students, welcome to lecture number 7 of the chapter issue of debentures। और अभी तक हमने जो किया है debentures issued in cash, debentures issued for consideration other than cash to vendor or underwriters or promoters, interest on debentures, debentures for collateral security, इनको मिक्स करके डिस्काउंट रिटर्न ऑफ हम एक कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस करेंगे। लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 30. Question number 30. On 1st April 18, Relaxo Limited purchased assets of Rs 5,30,000 and took over liabilities of 90,000 of Greg Limited at an agreed value of 380. रिलैक्सो कंपनी की बात हो रही है, उसने 5,30,000 के एसेट्स खरीदे, 90,000 की लाइबिलिटीज टेक ओवर की और बोला कि 3,80,000 मिलेंगे लमसम। तो शुड बी गुडविल और कैपिटल रिजर्व। It issued to the vendor 10% debenture of 100 each at 5% discount redeemable par after 5 years in full satisfaction of the purchase price। बदले में डिबेंचर्स डिस्काउंट पे इशू किए गए जो कि 5 साल बाद रिडीम होंगे। On the same date, the company issued 511% debenture of 100 each as collateral security to a bank who have advanced a loan of 45,000। बैंक को डिबेंचर्स इशू किए क्योंकि उससे लोन लिया था फॉर अ पीरियड ऑफ 3 years एंड ऑल्सो इशूड 50,000 12% डिबेंचर्स ऑफ 100 each at par redeemable after 3 years at 5% प्रीमियम। सो वेंडर को डिस्काउंट पे शेयर्स इशू किए, डिबेंचर्स इशू किए, कोलेक्टर सिक्योरिटी तो हमेशा पार पे ही रहेगी और पब्लिक को प्रीमियम पे इशू किए। द इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इज पेड हाफ ईयरली ऑन 30th September and 31st March each year। TDS is 20%। The company had 120 in SPR at the end of the year। Ignore interest on bank loan। जो बैंक से लोन लिया है उस पर इंटरेस्ट इग्नोर करो। You are required to pass the journal entries in the books of Relaxo Limited for the year ended 31st March 19 and prepare the extract of balance sheet। और आपको बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट भी बनाना है इन द बुक्स ऑफ रिलैक्सो लिमिटेड। क्वेश्चन 30। जर्नल First April 18, Relaxo Limited purchased assets of 530, assets account debit 5,30,000, took over liability of 90,000 to liabilities account 90,000 at an agreed value of 380 to Greg Limited 380। बैलेंस ऊपर आ रहा है तो गुडविल मीन्स हमने एसेट्स महंगे खरीदे हैं और सस्ता खरीदा है तो प्रॉफिट हो गया टू कैपिटल रिजर्व। This is 470, this is 530, so to capital reserve। Balance hardly matters, capital reserve ऊपर नीचे लिखो। This is 70, 60। It issued 10% debenture 100 each at 5% discount redeemable at 5 years in full satisfaction of the purchase price। Greg Limited account debit discount on issue account debit to 10% debentures। नीचे नंबर ऑफ डिबेंचर्स निकाला थे number of debentures 3,80,000
डिवाइडेड बाय, एक डिबेंचर 100 का है, 5% डिस्काउंट पे तो 95, 100 माइनस 5, 3,80,000 divided by 95 is 4,000 debentures. Yes. So discount debentures में आ जाएगा 4,000 into 100, 4 लाख. मैं ये जो ब्रैकेट में शो करता हूँ ये शो करना ज़रूरी नहीं होता है, ये आपकी रेफरेंस के लिए है. Discount on issue 20,000 and 4,000 into 95, 3,80,000. आगे, on the same date, company issued 511% debenture of 100 each as a collateral security to a bank who had advanced a loan of 45,000 to it for a period of 3 years. बैंक से लोन लेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन. हमने कितना लोन लिया बैंक से? 45,000 का. जैसे आपको बताया था डिबेंचर सस्पेंस टू डिबेंचर एंट्री डाल भी सकते हैं और नहीं भी, बट हम डालेंगे. 11% डिबेंचर्स इशू किए as collateral security. The entry to record that is debenture suspense account debit to 11% debentures. $500 debentures at 100 each, 50,000. ये डिबेंचर डिस्काउंट और प्रीमियम पे नहीं हो सकते क्योंकि ये इशू होते ही नहीं है, ये सिर्फ एज अ कोलेट्रल होता है, मोर्टगेज होती है. ये 5 साल के रिडीमेबल थे, ये 3 साल के बाद रिडीमेबल है. एंड ऑल्सो इशूड 5,000 12% 100 each at par, redeemable after 3 years at 5% premium. Debentures at 10% premium, redeemable at 5% premium. 10% के प्रीमियम पे इशू किए, जबकि रिडीम होंगे 5% के प्रीमियम पे. सो एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट हमने इशू किए 5,000 डिबेंचर ऑफ 100 each at 10%. सो बेसिकली 5,000 into 100 each 10% premium 110, 5,50,000. Next entry debenture application and allotment account debit to, ये है 12% debentures to 12% debentures account to security premium reserve account. डिबेंचर्स में आ जाएगी फेस वैल्यू विच इज 5,000 into 100, 5 लाख. SPR में आ जाएगा 5,000 into 10, 50,000. और यहाँ जाएगा 5,50,000. अब हम देखेंगे क्या डिबेंचर्स प्रीमियम पे रिडीम तो नहीं हो रहे. क्वेश्चन में मेंशन है कि ये डिबेंचर्स प्रीमियम पे रिडीम हो रहे हैं. क्योंकि ये डिबेंचर्स प्रीमियम पे रिडीम हो रहे हैं इसलिए वी नीड टू ओपन लॉस ऑन इशू अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट. और कितना प्रीमियम ऑन रिडम्पशन होगा? 5%. सो 5,000 into 5, 25,000 रुपये. 5 लाख के डिबेंचर्स 50,000 के प्रॉफिट पे इशू किए और जब रिडीम करेंगे तो 25,000 का लॉस होगा.
ये बात थी 1 अप्रैल की। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, सितंबर में इंटरेस्ट ड्यू होगा 30 सितंबर 18। डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट टू TDS पेबल अकाउंट। क्वेश्चन है डिबेंचर इंटरेस्ट कितना होगा, से वर्किंग नोट 1। I'll be making working note number 1 here। कितना इंटरेस्ट ड्यू है? सबसे पहले हमारे डिबेंचर्स हमने वेंडर को इशू किए थे। आप देख सकते हैं हमने ये डिबेंचर्स वेंडर को इशू किए, तो 4 लाख पर 10% का ब्याज। फिर हमने कोलेटरल सिक्योरिटी पे डिबेंचर्स दिए, इस पर इंटरेस्ट नहीं पे होता, आपको पता है, बैंक लोन का इंटरेस्ट इग्नोर करने, और 5 लाख का 12%। सो डिबेंचर इंटरेस्ट हो जाएगा 4 लाख का 10% फॉर 6 मंथ्स प्लस 5 लाख का 12% फॉर 6 मंथ्स। ये कौन सा इंटरेस्ट है? जो वेंडर को डिबेंचर्स दिए थे उस पर। और ये कौन सा इंटरेस्ट है? जो पब्लिक को डिबेंचर्स दिए थे उस पर। कोलेटरल सिक्योरिटी पे नहीं आएगा। 4 लाख का 10%, 40 फॉर 6 मंथ्स 20, 5 लाख का 12%, 60, 3 मंथ्स का 30। तो टोटल ब्याज बनता है 50,000। 20, 30, 50,000। सो डिबेंचर इंटरेस्ट इज 50,000, 30 September after 6 months, and according to question TDS is 20%. So 50,000 का 20% TDS में जाएगा, which is 10,000, और 40,000 हम डिबेंचर होल्डर को देंगे। अभी देंगे, दिए नहीं। We'll continue with that। अब पेमेंट की जाएगी। डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट, TDS पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक 40,000, 10,000, 50,000। सितंबर खत्म हो गया। अब हम बात जाती है हमारी, जस्ट मिनट, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जन, फेब, मार्च, 31 मार्च। फिर से डिबेंचर इंटरेस्ट ड्यू करेंगे। दोबारा कंप्यूट करने की जरूरत ही नहीं है, वही 6 मंथ्स का इंटरेस्ट आएगा दोबारा। तो जो पहले 6 मंथ्स का कंप्यूट किया था वही डाल देते हैं। 50,000 का डिबेंचर इंटरेस्ट, जिसका 20% गवर्नमेंट को देंगे, 40 डिबेंचर होल्डर को देंगे, और हम अब एक्चुअल में पेमेंट कर देंगे। डिबेंचर होल्डर TDS पेबल टू बैंक 40,000, 10,000, 50,000, राइट। व्हाट नेक्स्ट? क्योंकि अब बुक्स क्लोज करने का टाइम आ गया तो हमें डिस्काउंट ऑन इशू, लॉस ऑन इशू को राइट ऑफ करना पड़ेगा। वेंडर पे डिस्काउंट ऑन इशू था, पब्लिक पे लॉस ऑन इशू था, तो अब हम उसे राइट ऑफ करेंगे। 31 मार्च 19 में ही सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट, पहले हम उसे यूज करते हैं, आपको बताया था। वी हैव टू यूज सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व टू राइट ऑफ टू डिस्काउंट ऑन इशू टू लॉस ऑन इशू। डिस्काउंट ऑन इशू पे अगर आप ध्यान दें, डिस्काउंट ऑन इशू 20,000 है जो राइट ऑफ होगा, और लॉस ऑन इशू 25,000 है जो राइट ऑफ होगा। तो 20,000 here,
25,000 ईयर, और SPR में हमारे पास अगर आप ध्यान दें 1,20,000 पड़ा हुआ है। थर्ड पॉइंट गिवन है, द कंपनी एट 120 इन SPR, हमें चाहिए सिर्फ 45, 1,20 पड़ा हुआ है, गुड इनफ। अगर SPR कम होता, अगर SPR कम होता तो हम P&L से यूज करते। ओके, 1,20 तो नहीं है, चेक करना SPR कितने। SPR 120 पड़ा था, यहाँ पे 50 और आया है, ये देखिए 120 था, 50 और आ गया, सो टोटल इज 170। 170 में से 45 यूज हुआ है, गॉट इट। 120 का SPR पहले से पड़ा था, 50,000 का और क्रिएट हुआ है, 170 जिसमें से 45 ही यूज हुआ है। अब हम डिबेंचर इंटरेस्ट को राइट ऑफ करेंगे, 50,000 50,000 1,00,000, एंट्री बनेगी स्टेटमेंट ऑफ P&L विच इज नथिंग बट फाइनेंस कॉस्ट टू डिबेंचर इंटरेस्ट। डिबेंचर इंटरेस्ट को ट्रांसफर कर दिया, साल खत्म होने पर 50 + 50 विच इज 1,00,000। ये थी पूरे साल की एंट्रीज। हमने सिर्फ बैंक लोन को के इंटरेस्ट को इग्नोर किया क्योंकि मेंशन था, और ये भी नहीं पता इंटरेस्ट देना कितना बैंक लोन को। नाउ विल मेक द एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट, बट उससे पहले आई वांट टेक 1.5 minute to the entire entries, to all the entries. We have around 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 entries are there. So I'm giving you 1.5 minute for the same. One more minute बचा, speed up. So let's proceed with the balance sheet. So ये जो बैलेंस शीट है नॉर्मली एग्जाम में पूछी नहीं जाती, टेस्ट में पूछी नहीं जाती है, बट बिकॉज वॉल्यूम 3 में हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की हैं, उसमें ये चीज़ पूछी जा सकती है, और हमें तो एंटायर पेपर ही देना है ना, चाहे वॉल्यूम 3 हो या वॉल्यूम 2। सो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के हिसाब से दिस इज आवर बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट। हम सिर्फ लाइबिलिटीज़ बना रहे हैं, एसेट साइड नहीं बना रहे, क्योंकि एसेट साइड में हमारे पास है एसेट्स 5,30,000 के। आई रिपीट, एसेट साइड में हमारे पास है एसेट्स जो हमने वेंडर से खरीदे थे 530, और कैश एंड कैश इक्विवेलेंस में बैंक। सो दिस इज वी आर मेकिंग द लायबिलिटी साइड। सभी बोर्ड पर प्लीज, पहले समझेंगे, बाद में आपको 4 से 5 मिनट में दूंगा नोट डाउन करने के लिए। यस, आई विल गिव यू सफिशिएंट टाइम टू नोट डाउन। प्लीज चेक। शेयर कैपिटल नथिंग, पॉसिबल ही नहीं है शेयर कैपिटल नाउ, हमें क्वेश्चन में गिवन नहीं है। नाउ नंबर 1 रिजर्व्स एंड सरप्लस। आप देखेंगे हमारे पास कैपिटल रिजर्व क्रिएट हुआ है इस क्वेश्चन में। वी हैव कैपिटल रिजर्व ऑफ 60,000
and we have security premium reserve. How much security premium reserve we have? तो अगर आप ध्यान दें, पहले से हमारे पास 1,20,000 था, फिर 50,000 का SPR और क्रिएट हुआ है, जिसमें से 45,000 हमने यूज किया है। 1,20,000 का कैपिटल रिजर्व हमारे पास पहले से पड़ा था, क्वेश्चन में मेंशन था। 50,000 का SPR हमने क्रिएट किया जब हमने पब्लिक को डिबेंचर्स इशू किए, और 45,000 का SPR हमने यूज किया लॉस और डिस्काउंट को राइट ऑफ करने के लिए। सो ये देखिए, हमारे पास SPR 50 आया था और ये SPR हमने यूज किया था। तो अब यहां पे नेट अमाउंट चले जाएगी, 170 माइनस 45 इज 125। अगर SPR खत्म हो चुका होता तो हम P&L से यूज कर लेते। सो 1,85,000 का चला गया रिजर्व्स एंड सरप्लस। अब है बात नॉन करंट लाइबिलिटीज, अदर नॉन करंट लाइबिलिटीज की। वी हैव प्रीमियम ऑन रिडम्पशन 25,000, क्योंकि ये डिबेंचर्स रिडीम होने थे प्रीमियम पे, क्योंकि ये डिबेंचर्स प्रीमियम पे रिडीम होने थे 3 साल के बाद, इसलिए ये नॉन करंट लाइबिलिटीज में जाएगा। अब बात आती है डिबेंचर्स की। हमने पहले 10% डिबेंचर्स वेंडर को इशू किए। 10% डिबेंचर्स मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूं वेंडर को इशू किए। शो करना जरूरी नहीं होता है, बट इजी रहेगा आपके लिए समझना, इसलिए मैंने लिख दिए। ये 10% डिबेंचर्स वेंडर को इशू किए। उसके बाद हमने बैंक से लोन लिया 45,000 का बैंक लोन, 45,000 का। क्योंकि बैंक से लोन लिया था इसलिए हमने 11% डिबेंचर्स कोलेट्रली इशू किए थे 50,000, जिसमें से डिबेंचर सस्पेंस माइनस होगा, दैट वुड बी 50। और फिर हमने पब्लिक को डिबेंचर्स इशू किए थे 12% डिबेंचर्स, दैट इज 5 लाख। इंटरेस्ट टाइम से पे हो गया, TDS टाइम से पे हो गया। द टोटल इज 4 लाख के डिबेंचर्स वेंडर के टाइम, 45,000 का बैंक लोन और 5 लाख के डिबेंचर्स पब्लिक को जो इशू किए थे। 9,45,000 लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में 9,45,000। टोटल इशू करने की जरूरत नहीं है क्योंकि एक्सट्रैक्ट बना रहे हैं, ना कि टोटल कर रहे हैं बैलेंस शीट का। शेयर कैपिटल तो गिवन ही नहीं थी। दिस इज योर बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट। नाउ आई एम गिविंग यू 3 minutes टू नोट डाउन, 3 to 4 minutes फॉर द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट, रिजर्व सरप्लस, अदर नॉन करंट लाइबिलिटीज, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। कोई भी डाउट है जर्नल एंट्रीज पे ध्यान दे दीजिएगा, आपको क्लियर हो जाएगी। 3 minutes फॉर द सेम।
So I hope you are clear with this. This is how we make बैलेंस शीट. हमने इस क्वेश्चन में वेंडर से लाइबिलिटीज़ भी टेक ओवर की थी. अब हमें नहीं पता ना वो कौन सी लाइबिलिटीज़ हैं. क्रेडिटर्स हैं तो करंट लाइबिलिटीज़ में शो कर सकते हैं. हमने 90,000 की लाइबिलिटीज़ क्रिएट की थी. सो वो करंट लाइबिलिटीज़ नॉन कोई भी हो सकती है. वी हैव नो आइडिया हमने कौन सी लाइबिलिटीज़ क्रिएट की. हमारा ऑब्जेक्टिव बैलेंस शीट बनाना नहीं था, बेसिकली ये डिबेंचर्स शो करना था. Now let's move to the new question, question number 29. So moving to the last question. M Limited issued 29th. M Limited issued 10,000 8% debenture of 100 each at a premium of 10% on 1st October 2016. 10,000 डिबेंचर्स इशू किए प्रीमियम पे 1 अक्टूबर 2016. It purchased sundry assets of the value 250 and took over liabilities of 60,000 and issued debentures at a discount of 5% to the vendor. और ये डिबेंचर्स 10% के प्रीमियम पे रिडीम होने हैं. तो पहले हमने पब्लिक को डिबेंचर्स इशू किए प्रीमियम पे, फिर हमने वेंडर से को डिबेंचर्स इशू किए डिस्काउंट पे जो प्रीमियम पे रिडीम होने हैं. On the same date, it took loan from the bank of 1 lakh and issued 8% debentures as collateral security. Record the relevant journal entries in the books of M Limited. Ignore interest. So let's pass the journal entries. इंटरेस्ट की एंट्रीज नहीं डालनी, वहाँ लिखे इग्नोर इंटरेस्ट, तो बेसिकली इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स को भी इग्नोर करेंगे. 29th पब्लिक को डिबेंचर्स इशू करेंगे बैंक 1 अक्टूबर को. 1 अक्टूबर 16 बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन and allotment. 10,000 debentures of 100 each at 10% premium. तो मल्टीप्लाई बाय 110 करेंगे. $11 lakh. Next, debenture application and allotment. 2. क्वेश्चन में कुछ गिवन नहीं है कि पार पे रिडीम हो रहा है कि प्रीमियम पे, तो कुछ नहीं में गिवन, तो पार पे. 2 8% डिबेंचर्स टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व. 11 लाख डिबेंचर्स में आ जाएगा 10,000 इंटू 100 10 लाख और SPR में आ जाएगा 1 लाख इंटू 10 10,000 इंटू 10 1 लाख. It purchased sundry assets of the value 250 and took over liability. Date नहीं given, that means same date. Assets account debit to liabilities. 2.5 लाख के एसेट्स खरीदे 2,50,000 के, और लाइबिलिटीज में कुछ मेंशन नहीं है, तो मान लेते हैं क्रेडिटर्स हैं ताकि बैलेंस शीट बनाते वक्त इजी रहे. अदरवाइज यू कैन इग्नोर दैट टू. 2 मेंशन नहीं है, इट इज नॉट मेंशन्ड how much is purchase consideration. So the balancing figure is purchase consideration. The name is not given, so it is vendor. Name given होता तो हम उसका नाम लिखते, ना नेम नहीं गिवन तो दैट इज वेंडर. 250 के एसेट्स खरीदे, 60 की लाइबिलिटीज, तो वेंडर में आ गया 1,90,000. These debentures are redeemable at, हमने ये डिबेंचर्स डिस्काउंट पे इशू किए. अब ये डिबेंचर्स इशू किए जाएंगे, एंट्री बनेगी वेंडर अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इशू अकाउंट डेबिट टू
हमने डिबेंचर्स इशू किए 8% डिबेंचर्स। नंबर ऑफ डिबेंचर्स क्वेश्चन में नहीं गिवन कि कितने का डिबेंचर है, क्योंकि क्वेश्चन में नहीं गिवन तो कितने का डिबेंचर मानेंगे 100। मान कुछ भी सकते हैं, इजी रहता है 100, कैलकुलेशन इजी रहती है। तो वेंडर में है 1,90,000 डिवाइडेड बाय 95, 100 माइनस 5, जिससे हमारे पास नंबर ऑफ डिबेंचर्स आ जाएंगे 2000 इंटू 100, 2 लाख, और डिस्काउंट आ जाएगा 2000 इंटू 5, 10,000। क्योंकि ये डिबेंचर 10% के प्रीमियम पे रिडीम होने हैं, इस वजह से हम एंट्री डालेंगे लॉस ऑन इशू टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। 2 लाख का 10%, 20,000। हम डिस्काउंट और लॉस को मर्ज कर सकते थे, हमने नहीं किया, करने को अभी भी कर सकते हैं। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन क्रेडिट होगा 10% 2 लाख का। तो मैं यहां पे फुटनोट देता हूं साथ ही। नोट नंबर 1, फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर issued to vendor has been taken as ₹100 each। जो डिबेंचर हमने वेंडर को इशू किया उसकी फेस वैल्यू हम 100 रुपए मान रहे हैं। नंबर 2, डिस्काउंट ऑन इशू एंड लॉस ऑन इशू has not been merged। I repeat, ये नोट्स देने की जरूरत नहीं है, ये आपको सिर्फ समझाने के लिए मैंने दिए हैं, बिकॉज वी आर डूइंग कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस, कि सब कुछ जो हमने अभी तक किया इसमें हो। ऑन द सेम डेट, उसी दिन 1 अक्टूबर, इट टुक अ लोन फ्रॉम बैंक फॉर 1 लाख फॉर 9 months। हमने बैंक से लोन लिया 9 महीनों के लिए। एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन। 1 लाख का हमने कितने का लोन लिया? 1 लाख। एंड इशूड 8% डिबेंचर्स एज कोलेट्रल सिक्योरिटी। और हमने डिबेंचर्स इशू किए कोलेट्रल सिक्योरिटी पे। एंट्री बनेगी डिबेंचर सस्पेंस टू 8% डिबेंचर्स 1 लाख। अगर आप ध्यान दें, क्वेश्चन में मेंशन नहीं है कि कितने के डिबेंचर्स इशू किए कोलेट्रल सिक्योरिटी पे, तो जितने का लोन लिया उतने के ही इशू किए। नोट एज अमाउंट और नंबर ऑफ डिबेंचर्स इज नॉट गिवन। चलिए, नोट, वी हैव इशूड इक्वलेंट अमाउंट ऑफ डिबेंचर्स एज लोन। हमने उतने ही डिबेंचर्स इशू किए जितने का लोन है, क्योंकि मेंशन नहीं है। वैसे कम भी हो सकता है, ज्यादा भी, डिपेंड करता है ना प्राइमरी सिक्योरिटी कितने की है। इग्नोर इंटरेस्ट, डिबेंचर्स पर इंटरेस्ट नहीं देना, मेंशन बोले नहीं देना होता तो वेंडर पे देते, पब्लिक पे देते, कोलेट्रल सिक्योरिटी नहीं। दैट्स इट। सो टेक योर टाइम, आई एम गिविंग यू 1.5 minute एंड गो थ्रू 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 एंट्रीज। ये 6 एंट्रीज पे फोकस कीजिए एंड वेट। नाउ मूविंग टू 31 मार्च। वेट, पहले 31 मार्च को हम राइट ऑफ कर देते हैं डिस्काउंट एंड लॉस। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व
हमारे पास सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 1 लाख का है, पर हमने राइट ऑफ करना है 30,000। डिस्काउंट ऑन इशू 10,000 राइट ऑफ करेंगे, लॉस ऑन इशू 20,000 राइट ऑफ करेंगे, तो 30,000 एसपीआर यूज हो जाएगा। जबकि एसपीआर पे अगर आप फोकस करें, एसपीआर 1 लाख है, 1 लाख पुराना तो कुछ मेंशन नहीं, इस 1 लाख में से 30,000 यूज हो गया, 70 रह गया जो बैलेंस शीट में शो होगा। सो टेक योर 2 minutes, देन विल स्टार्ट विद द बैलेंस शीट ऑफ सेम। स्पीड अप। Speed up, students. Okay, now moving on to the balance sheet. अगेन पहले समझिए, बाद में नोट डाउन कीजिए, बिकॉज ये ऑल टुगेदर अलग क्वेश्चन आ सकता है आपको विदाउट जर्नल एंट्रीज कि बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट बनाइए। लायबिलिटी की साइड का पोर्शन शो कर रही है। इन शेयर होल्डर फंड्स वी हैव शेयर कैपिटल, और इस क्वेश्चन में कोई शेयर कैपिटल नहीं है, बट येस रिजर्व्स एंड सरप्लस में वी डू हैव। सो नोट नंबर 1, reserves and surplus. In reserves and surplus we have security premium reserve. हमारे पास 1 लाख का सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व था, जिसमें से हमने 30,000 यूज कर लिया एज पर सेक्शन 52 सबसेक्शन 2 कंपनीज एक्ट 2013। तो हमारे पास रह गया 70,000, तो रिजर्व्स एंड सरप्लस में आ जाएगा 70,000। नोट नंबर 2 वो मैं बाद में बनाता हूं। नोट नंबर 3, अदर नॉन करंट लाइबिलिटीज वी हैव प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, जो डिबेंचर्स हमने रिडीम करने हैं उसका प्रीमियम हमने क्रेडिट किया हुआ है 20,000। नोट नंबर 4, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। अगर आप ध्यान दें तो जो डिबेंचर्स हमने बैंक को दी हैं कोलेट्रल सिक्योरिटी पे वो शॉर्ट टर्म है,
क्योंकि क्वेश्चन में लिखे 9 मंथ्स के लिए, 3 महीने बाद तो रिडीम हो जाएंगे। 1 अक्टूबर को इशू किए, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जन, फेब, मार्च, 31 मार्च को बैलेंस शीट बन रही है, 3 महीने तो रह गए रिडीम करने के लिए। शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स के अंदर अदर नहीं है ये, क्योंकि पहले ही डिबेंचर्स 12 महीने से छोटे हैं। अगर डिबेंचर्स 12 महीने से छोटे इशू किए जाएं तो शॉर्ट टर्म, बड़े किए जाएं तो लॉन्ग टर्म। अगर 12 महीने रह जाएं, जैसे 3.5 साल के लिए थे तो अब सिर्फ 6 महीने रह गए, तो हम उसको अदर्स में शो कर देते हैं। ये तो डिबेंचर्स थे ही 1 साल से नीचे। शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में बैंक लोन हमने लिया था 1 लाख का, और 8% डिबेंचर्स इशू किए थे हमने, विच इज 1 लाख माइनस डिबेंचर सस्पेंस 1 लाख. So we are left with 1 lakh. Note number 5. ट्रेड पेएबल्स, हमने वेंडर से क्रेडिटर्स टेक ओवर किए हैं। आई रिपीट, हमने वेंडर से क्रेडिटर्स टेक ओवर किए हैं, तो यहां पे वो क्रेडिटर्स जाएंगे लाइबिलिटीज 60,000, right? What we are left with? We are left with note number 2. Let's make note number 2. Here I am making that note number 2. Long term borrowings. हमने पब्लिक को डिबेंचर्स इशू किए हैं 8% डिबेंचर्स, जो डिबेंचर्स हमने पब्लिक को इशू किए हैं 10 लाख में, और फिर हमने वेंडर को डिबेंचर्स इशू किए हैं। मर्ज भी किया जा सकता है क्योंकि परसेंटेज सेम है, कूपन रेट सेम है। अगर परसेंटेज डिफरेंट है तो अलग शो करेंगे, इस केस में इकट्ठा भी शो किया जा सकता था क्योंकि कूपन रेट सेम है। और जो कोलेट्रल सिक्योरिटी है वो यहां नहीं आएगी क्योंकि वो शॉर्ट टर्म थी। कुछ नहीं गिवन तो लॉन्ग टर्म होता है, जैसे इन दोनों के साथ कुछ मेंशन नहीं था। 12 लाख, and the total of liability side is 12 lakh 90, 13 lakh 90, 14 लाख 50,000, 14 लाख 50,000। बट इसके अलावा और भी बहुत कुछ हो सकता है। हमें कौन सा सारी इंफॉर्मेशन गिवन है, हमने कौन सा अभी कंपनी बनाई है, राइट? आई एम गिविंग यू 3 minutes नाउ. You are supposed to complete the balance sheet along with note number 2. Speed up, 3 minutes for the same.
Speed up, students. So this is last minute now. आपको एग्जाम में क्वेश्चन बैलेंस शीट के कम रहते हैं, बट बैलेंस शीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के टाइम पे आ सकती है. So this is all about lecture number 7 comprehensive questions. जब भी ये चैप्टर रिवाइज करना हो, यू आर सपोज टू रिवाइज क्वेश्चन 29 एंड 30. 29 में इंटरेस्ट इग्नोर किया, 30 में वो भी है. बाय बाय.